लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था राइट सर्कुलर सिलेंडर. There are two terms including with the cylinder. One is the right and another one is the circular. If the case is the base is not a circular, this is the circular base, and if the base is not circular means we cut the base from the mid and it becomes a semicircle, and we put these semicircles one over another and it will look like this. Then then this form is the cylinder, and it is a right cylinder. Right cylinder means its base center of the diameter lies exactly one above each other, right? But that base is not circular, therefore this cylinder is not a circular cylinder. It is a right cylinder, but it is not a circular cylinder. You can say that it is a non-circular cylinder. Now another example is if I put this circular bases over one another, but not exactly at the same line, it will be looking like this. इस तरीके से अगर हम रखते हैं तो then that cylinder is a circular cylinder, but as the base is circular, so this cylinder is a circular cylinder, but this is not the right cylinder as the direction as that the circular bases are not put over one another. ठीक है, हमारे पास यहाँ पर सेंटर जो है वो सेम एग्जैक्टली राइट एंगल पे लाई नहीं करता, ठीक है, बेस के रेडियस के साथ. Therefore this type of cylinder is not a right cylinder. ठीक है, right circular cylinder. It is a circular cylinder but it is not a right cylinder. So today we are going to discuss more about the volume of a cylinder. Hello, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. Today we are discussing the topic volume of a cylinder. How the volume of the cylinder is calculated. There is a circular base. एक सर्कुलर बेस है, ठीक है, जिसका रेडियस जो है वो क्या है, आर है. जब इस सर्कुलर बेस को, या आप ये कह सकते हो एक सीडीज है, सीडी का बॉक्स देखा है आपने, सबने देखा होगा, ठीक है, उसमें क्या होता है, सीडी जो है वो एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली सेम जगह पर जो है वो हमारी लाई करती है. ठीक है, तो इसी तरीके से मान लो ये आपकी एक सीडी है, this is one CD, this is another and so on. When you put these CDs one over another, this type and its heights become h. उसकी हाइट जो है वो क्या बन जाती है, आपकी h बन जाती है, और इसका रेडियस जो है वो क्या बन जाता है, आपका r बन जाता है. Then how you calculate the volume of the cylinder? First we find the volume of a base or circular base. इसका वॉल्यूम कितना था, या एरिया जो था वो कितना था. वॉल्यूम तो नहीं निकलेगा क्योंकि एक सिंपल है, बेस है, एक सर्कुलर बेस है, तो एरिया कितना आया इसका, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, राइट. अब पाई आर स्क्वेयर, आगे यूनिट क्या है, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है. अब जब इस बेस को एक के ऊपर एक जो है वो प्लेस किया गया तो वो इस तरीके से दिखेगा. जब इस तरीके से दिखेगा, नाउ दिस विल बिकम द राइट सर्कुलर सिलेंडर. ये क्या बन गया, आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर बन गया. अब मैं यहां से और ऐसे रखने से, एक के ऊपर एक रखने से इसकी हाइट जो है दैट विल बिकम h. वो क्या बन जाती है, h बन जाती है. देन यू कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. नाउ इट विल बिकम अ 3 डायमेंशनल शेप. वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कम्स आउट टू बी एरिया जो था बेस का, दैट इज पाई आर स्क्वेयर multiply by h. So the volume of a right circular cylinder, you can say volume of right circular cylinder comes out to be pi r square h, and it is cube unit. जो भी यूनिट होगी उसका क्यूब होगा. इस तरीके से फाइंड किया जाता है वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर. नाउ बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर if the radius of the base and height are 7 centimeter and 15 centimeter respectively. Means in the question it is given that r is equal to 7 centimeter
and height, that is h, is equal to 15 centimeter. You have to find the volume of the cylinder, right circular cylinder. Volume of cylinder is right circular cylinder. So the volume of right circular cylinder is equal to pi r square h, and this comes out to be value of pi is 22 by 7, r is 7 multiplied by 7, and this is 15. 7 se 7 cancel out. Now this 22 multiplied by 7 is 154. 154 when multiplied by 15, 7 4 11, and this 13 carry गया 1 2 3 1 0 2 3 1 0. As the units are given in centimeters, so the volume unit is centimeter cube. ठीक है, in this way we can solve the question. Now the next type of the problem is question number 2 is the circumference of the base of the cylinder is 132 centimeter. Now instead of giving radius, he gives you the circumference of the base, that is equal to 132 centimeter, and its height, that is h, is given as 25 centimeter. ठीक है, और circumference of base is given as circumference of the base is given as 132 centimeter. Now base is circular in shape, so the circumference is equal to 2 pi r. ठीक है, circumference जो है वो सर्कुलर, बेस जो है वो सर्कुलर है, तो circumference किसके इक्वल होगा? 2 pi r के इक्वल होगा. So 2 pi r is equal to 132. From here you can find out the value of the r, that is 2 multiplied by 22 by 7 multiplied by r is equal to 132. So the r comes out to be 132 multiplied by 7. This divided by 2 multiplied by 22. 132 goes on 11 table, 1 and 2, and this is on 2, this is 6, and this is 3. So radius comes out to be 21 centimeter. In this way you can find the radius. ठीक है, अब r भी पता चल गया और h भी पता चल गया. देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? अब जैसे हमें वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फाइंड आउट करना था, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फाइंड आउट करने के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला जो है वो क्या है? वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. तो हमें किस किस की वैल्यूज पता होनी चाहिए? एक आर की वैल्यू पता होनी चाहिए, एक एच की वैल्यू पता होनी चाहिए. सो अपने दिमाग की एक्सरसाइज कर रहे हो क्वेश्चंस के अंदर. पहले ये देखो कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है. जो पूछा गया है उसके लिए हमें क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट है. इसमें हमें रिक्वायरमेंट है आर की और एच फाइंड आउट करने की. अब एच मुझे क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, बट आर मुझे प्रोवाइडेड नहीं है. तो अनदर थिंग, कोई ऐसी प्रोवाइडेड हो जिसका आर के साथ कोई रिलेशन हो, तो वो रिलेशन सोचो क्या होगा. अब यहाँ इन्होंने सरकमफ्रेंस दे दिया, तो सरकमफ्रेंस का रिलेशन आर के साथ है, यस है, तो वहां से आप उसको निकालने की कोशिश करो. ठीक है, ये मतलब क्वेश्चन रीड करके ये मत सोचो कि ये मेरे से नहीं होगा. अगर इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 101% यू विल बी सक्सेसफुल इन सॉल्विंग द क्वेश्चन. नाउ pi value is 22 by 7, r value comes out to be 21 multiplied by 21, and h is already 25. So 7 3s are, this is 66 multiplied by 21 multiplied by 25. When 25 is multiplied by 21, it comes out to be 25 and 50. This goes on 525. ये कितना आ गया? 525 आ गया. अब 525 को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ? 66 के साथ. 525 मल्टीप्लाई बाय 66. 6 5 30, 3 कैरी गया, 6 2 12 and 3 15 कैरी गया, 1 30 and 31. So again 3150. So the answer comes out to be 34650. 34650. Now the units given in the question are centimeter,
सो द वॉल्यूम कम्स इन द सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या आ गया आपके पास 34650 centimeter cube. In this way you can solve the question. Now the next question is, a rectangular sheet of paper 44 centimeter cross 18 centimeter is rolled along its length and a cylinder is formed. Find the volume of the cylinder. अब सबसे पहले मैं पिक्चर ड्रॉ करती हूँ. This is the picture of rectangular sheet. 44 सेंटीमीटर पहले लिखा हुआ है, तो इट मीन्स दैट इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, दैट इज 44 सेंटीमीटर एंड दिस इज 18 सेंटीमीटर. ठीक है, इस शीट को रोल किया गया और इस शीट को रोल करके एक सिलेंडर फॉर्म किया गया. रोल किसे, कौन सी साइड के अलोंग किया, जो लेंथ है दैट इज 44 सेंटीमीटर उसके अलोंग किया गया. नाउ यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. अब आपको जो दे रखा है फाइंड आउट करना है, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला जो है वो हमें पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है. अब जब मैं इसको रोल करूंगी तो एच तो मेरे पास कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर आ गया. तो एच जो है दैट इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर. अब आर की वैल्यू मुझे पता नहीं है कैसे होगी, बट मुझे शीट की लेंथ पता है एल, यू कैन से दैट इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर. बट जब शीट को रोल करते हैं तो यहां पर मैंने बताया था कि ये जो लेंथ होती है दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस. वो क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस होता है एंड दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर. So instead of writing here L, I can write it as 2 pi r is equal to 44 सेंटीमीटर. ठीक है, अब यहां से मैं r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ कि क्या होगी. पुट द वैल्यू ऑफ पाई here, 2 multiply by 22 by 7, this multiply by r is equal to 44. Now the r value comes out to be 44 multiply by 7 and this is 2 multiply by 22. 22 से इसको कट करो 2, this r comes out to be 7 सेंटीमीटर. अब फॉर्मूले में दोनों चीज पता चल गई, r भी पता चल गया और h भी पता चल गया. तो हम इसको जो है वो पुट करते हैं. सो हमारे पास वॉल्यूम जो आएगा दैट कम्स आउट टू बी 22 बाई 7. r की वैल्यू कितनी आई थी, 7 आई थी. दिस मल्टीप्लाई बाय 18. ठीक है, 22 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 154. 154 मल्टीप्लाई बाय 18, मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 154 ऐड करेंगे 772, 2772, 2772. Units are given in centimeter, so the volume comes out to be 2772 सेंटीमीटर क्यूब. इस तरीके से जो है वो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो रिमेंबर, जिस भी टॉपिक का आपको क्वेश्चन दिया गया है उसके फॉर्मूले आपको इमीडिएटली जो है वो स्ट्राइक होने चाहिए. इतने लंबे चौड़े फॉर्मूले मैंने बताए नहीं हैं कि जैसे आपको मान लो सरफेस एरिया दे रखा है तो वहां से आप रेडियस कैसे निकालोगे तो उसका एक अलग फॉर्मूला बता दिया हो. इस तरीके का नहीं है. गिने चुने हर एक टॉपिक के अंदर, चाहे वो आपका सिलेंडर हो या फिर इससे पहले हमने जो स्क्वायर पढ़े हैं, रेक्टेंगल्स पढ़े हैं, तो उसमें एक बेसिक एरिया का फॉर्मूला बताया है. वहां से आप लेंथ निकालना चाहो, ब्रेड्थ निकालना चाहो, विड्थ निकालना चाहो, सिलेंडर के केस में आप रेडियस निकालना चाहो, हाइट निकालना चाहो, एरिया निकालना चाहो, सर्कमफ्रेंस निकालना चाहो, वो सब आप आसानी से निकाल सकते हो. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the radius of the base of a right circular cylinder is half. अगर बेस का जो रेडियस है राइट सर्कुलर सिलेंडर उसको हाफ कर दिया जाए, कीपिंग द हाइट सेम रखी जाए, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिड्यूस सिलेंडर एंड टू दैट ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर. सो द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर, दैट इज वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल cylinder, let it be V1 and this is equal to, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर एच. ठीक है, अब रिड्यूस्ड किया है तो वॉल्यूम ऑफ रिड्यूस्ड सिलेंडर,
रिड्यूस सिलेंडर कैसे, लेट ये वॉल्यूम हो गया V2, ठीक है। अब रिड्यूस सिलेंडर कैसे हुआ, जब रेडियस को हाफ कर दिया गया, तो इट मींस r को r/2 कर दिया गया, तो दिस इज पाई r/2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट सेम थी, सो दिस कम्स आउट टू बी पाई r²h/4, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है किसका, वॉल्यूम ऑफ द रिड्यूस सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ रिड्यूस सिलेंडर हमारा क्या था, V2 था, सो V2/2 दैट ऑफ ओरिजिनल, सो V2/V1 का रेशियो जो है वो फाइंड आउट करना है। पुट द वैल्यू ऑफ V2 दैट इज पाई r²h, दिस यू कैन राइट इट एज मल्टीप्लाई बाय 1/4, ठीक है। V1 की वैल्यू क्या है, पाई r²h है, सो पाई r²h कैंसिल आउट बाय पाई r²h, एंड V2/V1 का जो रेशियो आएगा दैट कम्स आउट टू बी 1/4। इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से क्या है वो क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ द प्रॉब्लम इज द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर आर इन रेशियो 5:7। अब एक सिलेंडर है, उसकी रेडियस और हाइट का रेशियो जो है दैट इज गिवन एज 5:7, बट एंड इट्स वॉल्यूम इज 550 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड इट्स रेडियस, हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है। लेट रेडियस इज 5x, वॉल्यूम जो है सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है, तो दिस इज 5x सेंटीमीटर, सो फ्रॉम हियर r इज इक्वल टू 5x, ठीक है। नाउ एंड लेट height is 7x centimeter, so from here h comes out to be 7x. Volume is given as 550 centimeter cube. Volume को हम V से डिनोट करते हैं, so volume V of the cylinder is equal to pi r²h. This is 550, pi value is 22/7, r is given as 5x, so this is 5x multiplied by 5x, h is given as 7x, so this 7 is cancelled out with this 7, this is 550, now 22 multiplied by 5 is 110, 110, this is x multiplied by x multiplied by x is x cube, एक 5 आपका रह गया, so x cube comes out to be 550, this divided by 110 multiplied by 5, 0 से 0 cancel out, this goes on 5 and 5 से 5 cancel out, so the x cube comes out to be 1. x cube कितना आ गया आपके पास, 1. x की वैल्यू निकालोगे तो that comes out to be cube root of 1, and cube of root of 1 is 1, so the x is 1. Now what you have to find, you have to find the radius of the cylinder, so the r is what we assume is 5x, so put the value of x in this comes out to be r is equal to 5 centimeter. In this way you can solve the question, ठीक है। Now the next type of problem is the volume of a cylinder is 448 pi centimeter cube. क्वेश्चन में जो वॉल्यूम दे रखा है दैट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ पाई, ठीक है। बट जब आपको वॉल्यूम निकालने के लिए कहा जाए तो आप पाई की फॉर्म में आंसर नहीं छोड़ सकते, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व टिल द लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट तक आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन बनाने वाला जो एग्जामिनर है या क्वेश्चन लिखने राइटर है जो, वो इस तरीके से लिख सकता है, बट जब आपको निकालने को कहा जाए तो आप इस तरीके से नहीं छोड़ सकते उसको, ठीक है। सो द वॉल्यूम इज गिवन एज 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब एंड हाइट h इज गिवन एज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड इट्स लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है एंड टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। अब लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या चाहिए होता है, r की वैल्यू चाहिए होती है और h की वैल्यू चाहिए होती है। h की वैल्यू गिवन में दी हुई है बट r की वैल्यू नहीं दी हुई, तो r की वैल्यू निकालने के लिए हम कहां से निकालेंगे,
निकाल सकते हैं, वॉल्यूम से निकाल सकते हैं। सो द वॉल्यूम से अगर मैं निकालूंगी तो क्या होगा, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, ये कितना दे रखा है, दिस इज द वॉल्यूम, दिस इज गिवन एज 448 पाई। सो पाई से पाई कैंसल आउट, ठीक है, आर स्क्वायर कम्स आउट टू बी 448, दिस डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या है 7 है। अब इस 7 को मैं अगर दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये क्या बन जाएगा, डिवाइड में बन जाएगा, दिस इज, सो आर स्क्वायर कम्स आउट टू बी 7 6 42, 28, 7 4 28, ठीक है, आर स्क्वायर कितना आ गया, 64 आ गया। सो द आर कम्स आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 64 and that square root of 64 we all know that is 8. So the r comes out to be 8 centimeter. Now first we have to find the lateral surface area. अब मेरे पास r की वैल्यू भी है और h की वैल्यू भी है। So lateral surface area का फॉर्मूला क्या होता है, lateral surface area is equal to 2 pi r h, यही होता है। Put the values, this is 2 multiply by 22/7। अगर क्वेश्चन में पाई की वैल्यू स्पेसिफाई नहीं है तो ये मत मान के चलना कि आपको पाई की वैल्यू स्पेसिफाई नहीं है तो आपको सॉल्व नहीं करना। यू हैव टू रिमेंबर द वैल्यू ऑफ द पाई, पाई इज इक्वल टू 22/7, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। डोंट एक्सपेक्ट जो पेपर सेटर है वो आपको वैल्यू बताएगा। h कितना है, 7 है, सो 7 से 7 कैंसिल आउट, दिस इज 44 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड दिस 8 4 जा 32, 3 कैरी गया, this is 352 units are given in centimeter, so the lateral surface area is also coming in centimeter square. So the answer is 352 centimeter square is the lateral surface area. Now the next part what you have to find is total surface area. Total surface area, total surface area क्या होता है, पाई r 2 pi r within bracket r plus h. Put the values, 2 multiply by 22/7, r value comes out to be 8, this is 8 plus 7, ठीक है, this is 44 multiply by 8 multiply by 15, 8 plus 7 is 15, this divided by 7, 44 multiply by 8 we already calculated, that is 352 multiply by 15 and this divided by 7. So 352 multiply by 15, 5 2 are 10, 25, 26, 2 carry गया 17, this is 352, तो 0 8 7 5 12 carry गया 1, this is 5280, this is 5280 divided by 7, ठीक है, तो द आंसर कम्स आउट टू बी 7 7 जा 49, 3 रिमाइंडर रह गया 38, तो 35, 7 5 जा 35, फिर से 3 रह गया, 7 4 जा 28, 2 रिमाइंडर रह गया, तो 2 रिमाइंडर रह गया तो 7 2 जा 14, फिर 6 रिमाइंडर रह गया तो 60, तो क्या हमारा 7 8 जा 56, फिर से हमारे पास कितना रिमाइंडर रह गया, 4 रिमाइंडर रह गया, तो 7 5 जा 35, सो द आंसर कम्स आउट टू बी 754.29 centimeter square. This is the answer of the total surface area. In this way you can solve the question. आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. Now the next type of the problem is how many cubic meters of earth must be dug out. कितने क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ को खोदा जाए, एक वेल बन जाए जिसकी डेप्थ हो कितना 22.5 मीटर एंड डायामीटर हो 7 मीटर, ठीक है। तो यहां से अगर मैं निकालूं फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज वॉल्यूम, क्यूबिक मीटर है तो इसका मतलब क्या है कि हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ dug out is equal to the volume of the well
and well is in the shape of cylinder. Volume of the well, and well is in the form of cylinder, so the formula is pi r square h. ठीक है, अब डायामीटर d दे रखा है 7 मीटर, तो रेडियस कितना हो गया 7/2 मीटर. ठीक है, 7 मीटर दे रखा था तो रेडियस आ गया 7/2 मीटर. अब डेप्थ यानी कि हाइट जो है दैट इज गिवन एज 22.5 मीटर. वो 22.5 मीटर दे रखी है. सो यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूंगी तो दिस कम्स आउट टू बी 22/7. दिस इज 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2 मल्टीप्लाई बाय दिस इज 22.5. 7 से 7 कैंसिल आउट करते हैं. 22 मल्टीप्लाई बाय 2 से 11. 11 7 जा 77 मल्टीप्लाई बाय 22.5 दिस डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, अब 2 to 5 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे 77 से. 7 5 जा 35, 3 कैरी गया 14 और 17 कैरी गया 1, 7 2 जा 14 and 1 15. So 5 7 5 1. This comes out to be 12 कैरी गया 1, 13 कैरी गया 1, 7 and 1. Put the decimal after one place, so the answer comes out to be 1732.5 divided by 2. But this can be solved further. To solve it, this is 866.25. ठीक है, units are given in meter, so the answer is coming out in the meter. Answer is 866.25 meter cube. This is the first part of the question. Now also find the cost of plastering the inner curved surface. अब जो अर्थ के अंदर वेल डग आउट किया है उसके इनर सरफेस को क्या करना है, प्लास्टर करना है. और प्लास्टरिंग की कॉस्ट कितनी है, ₹3 पर स्क्वायर मीटर है. 3 रुपीज लगते हैं पर स्क्वायर मीटर को प्लास्टर करने में. तो टोटल कॉस्ट जो पड़ेगी वो कितनी पड़ेगी, उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस का एरिया निकालना पड़ेगा. दैट कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू नथिंग बट द लेटरल सरफेस एरिया. लेटरल सरफेस एरिया ऑफ वेल, एंड दैट इज इक्वल टू 2 pi r h. Put the values here. 2 multiply by 22/7, r is 7/2 multiply by 22.5. 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट. नाउ 225 को हम मल्टीप्लाई करते हैं अब किसके साथ, 22 के साथ. मल्टीप्लाइड बाय 22, दिस कम्स आउट टू बी 5 2 जा 10 कैरी गया 1 5 and 4. ठीक है, this is again 450 0594. एक के बाद डेसिमल लगाना है. सो दिस कम्स आउट टू बी 495 मीटर स्क्वायर. ठीक है, अब निकालनी है क्या, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग. तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग कितना एरिया है, 495 मीटर स्क्वायर. कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग ऑफ 495 मीटर स्क्वायर वेल कर्व्ड एरिया कितना होगा, दैट कम्स आउट टू बी दिस 495 मल्टीप्लाई बाय, पर मीटर स्क्वायर की कॉस्टिंग कितनी है, 3 रुपीज है. तो 495 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ. जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 15 27 28, 2 कैरी गया, this is 14. So the cost of plastering come out to be 1485. इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग निकाल सकते हो. This is the another type of the question. Now the next type of the problem is find the number of coins. नंबर ऑफ कॉइन्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं. कॉइन्स का जो डायमीटर है दैट इज 1.5 सेंटीमीटर एंड 0.2 सेंटीमीटर थिक. इट मीन्स फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉइन्स. ठीक है, कॉइन्स का डायमीटर कितना दे रखा है, 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है. सो यहां से हम रेडियस निकालते हैं तो रेडियस आएगा 1.5, दिस डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस कम्स आउट टू बी 0.75
सेंटीमीटर। थिक दे रखा है, थिक मीन्स हाइट दे रखी है कॉइन की, दैट इज गिवन एज 0.2 सेंटीमीटर। दिस इज कॉइन। नाउ इन कॉइन्स को क्या करना है, मेल्ट करना है। तो कितने कॉइन्स को हम मेल्ट करें कि टू बी मेल्टेड टू फॉर्म अ सिलेंडर, सिलेंडर बन जाए, और सिलेंडर की हाइट जो आएगी दैट कम्स आउट टू बी, यहां पर मैं बात करती हूं किसकी, सिलेंडर की। सिलेंडर की जो हाइट है h दैट इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर, और डायामीटर दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया 4.5, दिस डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस कम्स आउट टू बी 2.25 सेंटीमीटर। अब कितने कॉइन्स को मेल्ट करें कि हमारे पास सिलेंडर की स्पेसिफिकेशन ये आ जाए, तो इट मींस वॉल्यूम जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम पहले फाइंड आउट करते हैं वॉल्यूम ऑफ द कॉइन। कॉइन भी जो होता है वो सर्कुलर इन शेप होता है, सो अप्लाई द फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ द कॉइन इज पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज पाई मल्टीप्लाई बाय 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.2। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फाइंड आउट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज ऑल्सो इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, बट सिलेंडर के लिए स्पेसिफिकेशंस क्या हैं जो यहां लिखी हुई है, तो पाई की वैल्यू को पाई रहने देते हैं, पाई आर इज 2.25, R is given as 2.25, this is 2.25 and this multiply by h। नंबर ऑफ कॉइन्स जो है वो कैसे निकलेंगे, सिलेंडर फॉर्म करना है तो नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स, कॉइन। ठीक है, तभी नंबर ऑफ कॉइन्स निकलेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है दैट इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय 2.25 मल्टीप्लाई बाय 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10, एंड वॉल्यूम ऑफ कॉइन कितना है, पाई मल्टीप्लाई बाय 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.2। पाई से पाई कैंसिल आउट, 0.75 की टेबल में जाता है 3 पर, ये भी जाएगा 3 पर, इसका डेसिमल में यहाँ हटाऊंगी तो यहाँ 0 आ जाएगा, 2 से ये जाएगा 50 पर। ठीक है, नाउ 3 3 9, 9 5 45, सो द नंबर ऑफ कॉइन्स कम्स आउट टू बी 450। 450 कॉइन्स को मेल्ट करके हम इस स्पेसिफिकेशन का, गिवन स्पेसिफिकेशन का सिलेंडर जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ द प्रॉब्लम इज, द लास्ट क्वेश्चन फॉर द टुडे इज ए ग्लास सिलेंडर विद डायामीटर 20 सेंटीमीटर। एक ग्लास सिलेंडर है जिसका डायामीटर कितना है, 20 सेंटीमीटर का है, उसमें क्या है, हैज वाटर टू हाइट ऑफ, उसमें पानी है, कितना हाइट है उसकी, पानी की हाइट है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और उस ग्लास का डायामीटर है, ग्लास सिलेंडर का डायामीटर कितना है, 20 सेंटीमीटर। सो यहां से अगर मैं रेडियस निकालूंगी तो दैट कम्स आउट टू बी 20/2 दैट इज 10 सेंटीमीटर। Now read the question, next line of the question, a metal cube of 8 centimeter edge is immersed in it completely। एक metal cube है जिसकी edge जो है वो क्या है, 8 सेंटीमीटर की है, उसको उस गिलास सिलेंडर जो कि पानी से भरा हुआ है उसके अंदर इमर्स किया गया। वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, मेटल है तो ऑब्वियस ही बात है वो पानी के अंदर क्या हो जाएगा, कंप्लीटली इमर्स हो जाएगा। कैलकुलेट द हाइट, अब हाइट कैलकुलेट करनी है, बाय विच वाटर विल राइज इन द सिलेंडर। वाटर जो है वो पानी के अंदर नहीं, वाटर लेवल जो है गिलास के अंदर, गिलास सिलेंडर के अंदर राइज होगा। लेट दैट हाइट, लेट द राइज इन वाटर लेवल इज इक्वल टू h सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या होना चाहिए, कितना वाटर लेवल राइज होगा, जितना वॉल्यूम का क्यूब होगा, ठीक है, उतना ही पानी का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। नाउ दैट कम्स आउट टू बी वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड मतलब जो राइज हुआ है हमारे पास उसकी बात कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द
क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब वाटर की जो शेप थी वो कैसी थी, सिलेंड्रिकल शेप थी, क्योंकि वो ग्लास सिलेंडर के अंदर था। सो दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एच। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज, वी ऑल नो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज एच का क्यूब, एच ऑफ क्यूब is given as 8 centimeter. ठीक है, so this comes out to be 8 cube. Put the values here. 22 by 7, r is given as 10, multiply by 10, height we have to calculate. ठीक है, 8 का क्यूब जो है वो हमें पता है, that is equal to 512. So that h is comes out to be 512 multiply by 7, this divided by 22. 2 से कट करते हैं, ये 11 पे जाएगा, इसको 2 से कट करेंगे तो 256, 256 multiply by 7, this divided by 11. 256 multiply by 7, 7 6 are 42, 39, 17, 1792 डिवाइडेड बाय 11। साथ में क्या है, 2 10 है तो 100 में मल्टीप्लीकेशन, दिस इज 100, डिवाइड में ही 100 आएगा, यहां पर क्या आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ दिस डिवाइड 1792 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूंगी तो पहले 1 पे गया 11, 6 9 69, 6 66, 3 2, दिस गोज ऑन 2। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास कितना बच गया 22, 1 1 इधर 0, so this is 0, this goes on 110, no 1792, and this comes out to be yes 11 को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, this is 6 9 6 पे गया 3 and 2, this is 22, यहाँ पर क्या बच गया 10 बच गया, सॉरी this is 10, this is 9, this is 99। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। सो यहां पर आंसर कितना आता है 162.9। इसको अगर जब 100 से डिवाइड करते हैं सो दिस कम्स आउट टू बी 1.629, और यू कैन राइट इट एज 1.63 सेंटीमीटर। ठीक है, इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। कितना राइज है 1.63 सेंटीमीटर तक वाटर लेवल जो होगा वो राइज होगा। Try to solve more and more questions from your textbook or from your competitive exams books. Still, if you are facing any problem in solving the question, please post your query along with the photograph, or you can write it down in the comment box, your query. Please like, share and subscribe the channel for the video notification. Thank you.